मीनाक्षी, अमेरिका में राष्ट्रीय चुनाव में कांटे की टक्कर है। इलेक्टोरल वोट में बाइडेन आगे हैं, तो वहीं वोट प्रतिशत में भी बाइडेन ने ट्रंप को पछाड़ दिया है। बाइडेन को 223 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं, जबकि ट्रंप को अब तक सिर्फ 74 वोट ही मिले हैं। लेकिन अभी कई अहम और बड़े राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं। और इसीलिए देखिए नेहा, ये लड़ाई दिलचस्प हो चली है कि आखिर व्हाइट हाउस कौन पहुंचने वाला है। इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वहां पर एक अलग तरह का जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है अलग अलग कैंप्स में। लेकिन ये अपने आप में अमेरिका का इतिहास का सबसे दिलचस्प मुकाबला कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के वक्त में पहले तो इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, किस तरह से होंगे, इस तरह की कई चर्चाएं थी। लेकिन फिर तय समय के हिसाब से इलेक्शन हुए हैं। अब देखना यह है कि नतीजों के बाद तस्वीर कब साफ हो पाती है। स्विंग स्टेट्स क्या करेंगे, किसके पक्ष में जाएंगे, इसे लेकर अब पूरी बहस टिकी है। क्योंकि ऐसे स्टेट्स जैसे उदाहरण के तौर पर फ्लोरिडा, जहां पर 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो ट्रंप जीत चुके हैं। और इस लिहाज से ऐसा कहा जाता है अमेरिका में कि वो स्टेट्स जहां पर ये नंबर ज्यादा हैं, जिसके पक्ष में जाता है, सत्ता की चाबी उसके हाथ में आती है। लेकिन अभी भी पेंसिल्वेनिया की लड़ाई बाकी है, वहां पर तस्वीर का स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन जो बाइडेन फिलहाल अभी तक के नतीजे और रुझान के हिसाब से आगे दिखाई दे रहे हैं। जिन राज्यों में ट्रंप ने परचम लहराया है उनके नंबर्स आपको हम दिखा रहे हैं। टेक्सास, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, ओहायो। नंबर ऑफ वोट्स जो ट्रंप ने यहां पर हासिल की हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन। हालांकि अभी भी मिशिगन और विस्कॉन्सिन में जो वोट्स ट्रंप हासिल कर चुके हैं, इंतजार करना होगा इस बात का भी कि क्लियर मैंडेट यहां का सामने आए। और अब आप वो राज्य देखिए जहां पर जो बाइडेन या तो जीत चुके हैं या ज्यादा नंबर उन्होंने हासिल किए। लेकिन यहां पर देखिए डायस भी तैयार है, कुछ ही देर में यहां पर संबोधन होगा। Good evening. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon? Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it.
Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. Let's walk over here. I'll be talking to you tomorrow. Thank you. तो आप सुन रहे थे जो बाइडेन को यहां पर मंच से डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। हालांकि नेहा देखिए, बड़ा दिलचस्प यहां पर यह है देखना कि जिस तरह से वो लगातार शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स का, और ये भी कह रहे हैं कि जो ये 3 स्विंग स्टेट्स थे, चाहे पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, कि हम यहां भी आगे निकलेंगे और जीतेंगे। फ्रांस के करीबी देश ऑस्ट्रिया में आतंकवादियों ने हद पार कर दिया है। वियना में सोमवार की शाम ऑटोमेटिक हथियार से लैस आतंकवादियों ने 6 जगहों पर जमकर तांडव मचाया। जो लोग कट्टरवाद और आतंकवाद को अभी भी गंभीर समस्या मानने से इनकार करते हैं, वियना पर हमला मुंबई टेरर अटैक जैसा ही था और ये उनके लिए अंतिम चेतावनी। वो साल था 2008 और वो तारीख थी 26/11 जब कसाब एंड कंपनी ने मुंबई पर हमला किया। ये साल है 2020 और तारीख थी 2/11 जब कसाब के अनुयायियों ने वियना पर मुंबई जैसा हमला किया। वैसी ही गोलियों की तड़तड़ाहट, वैसे ही AK-47 लेके गलियों में घूमते आतंकवादी, वैसे ही दौड़ते भागते लोग, वैसी ही चीख पुकार, एक के बाद एक 6 जगहों पर गोलीबारी, वैसी ही पुलिस के साथ आतंकियों की मुठभेड़ और वैसा ही अंजाम। ऑस्ट्रिया का शहर वियना सोमवार की रात मुंबई बन गया और आतंकवादियों को जो दिखा उसे गोलियों से भून दिया, वैसे ही जैसे कसाब और उसके साथियों ने किया था। अचानक से गोली चलने की आवाज आने लगी। पहले तो हम ये नहीं जान पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक लोग भागने दौड़ने लगे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। यहूदियों की पूजा स्थल के पास ये आतंकी हमला रात करीब 8 बजे शुरू हुआ, जब AK-47 लेकर आतंकवादी वियना की गलियों में निकले और जो उनके सामने आया उस पर गोलियां चला दी। ये वीडियो देखिए। हमले के दौरान एक शख्स डरकर दीवार के पास छिपने की कोशिश करता है, तभी वहां एक आतंकी आ जाता है, शख्स पर गोलियां बरसाता हुआ आगे बढ़ जाता है। घायल शख्स उठने की कोशिश करता है, आतंकी वापस लौटता है और उस घायल शख्स पर दोबारा फायरिंग करता है। 8:09 पर आतंकवादी मारा जाता है और दूसरा फरार हो जाता है, लेकिन इन 9 मिनटों में आतंकवादी कम से कम 7 निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। एक आतंकवादी हमला है। शुक्र है कि इस कठिन वक्त से ऑस्ट्रिया जल्द ही निकल जाएगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हमले में हमने भी कुछ लोगों को खोया है और कुछ घायल हुए हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सोमवार आधी रात से ऑस्ट्रिया में अगले 1 महीने के लिए दोबारा से लॉकडाउन लागू होने वाला था। लॉकडाउन से पहले बार और रेस्तरां में भीड़ थी, बहुत सारे लोग बाहर घूमने निकले हुए थे। आतंकवादियों को ये बात पता थी, इसलिए हमला पूरी तरह सुनियोजित था। हमने एक आतंकवादी खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ आतंकी अब भी हमारी पहुंच से दूर हैं। जिस तैयारी और हथियारों के साथ आतंकी आए, वो यकीनन एक आतंकवादी हमला है। फरार आतंकी को पकड़ने के लिए वियना में चप्पे चप्पे पर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। 1000 से ज्यादा जवान वियना में सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। अभी तक 2 आतंकवादियों के बारे में पता चल चुका है जो ISIS के समर्थक थे। एक आतंकी की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो AK-47 लेकर बैठा है।
एक आतंकी मारा जा चुका है, लेकिन शक है कि कई और हमलावर इस आतंकी घटना में शामिल हो सकते हैं। हमारी स्पेशल फोर्सेज ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से लैस आतंकवादी को पकड़ने में कामयाब रही। हमारी जानकारी के मुताबिक अब भी एक आतंकी फरार है। फ्रांस में एक के बाद एक इस्लामिक टेरर अटैक की घटनाओं के बाद अब ऑस्ट्रिया में मुंबई जैसा आतंकी हमला होना ये बताता है कि इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस की लड़ाई सिर्फ उसके अकेले की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है। क्योंकि पहले भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार था, अब फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, और एक बात पक्की है, आज वियना पर मुंबई जैसा टेरर अटैक हुआ है, कल किसी और देश पर वियना जैसा टेरर अटैक होगा। ये समस्या जड़ से इलाज किए बिना खत्म नहीं होगी। फ्रांस के कार्टून विवाद पर देश में विरोध प्रदर्शन और जहरीली जुबान उगलने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता फरहान जुबैरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश में है, तो मुनव्वर राणा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। फ्रांस में हुए हमले के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने जो बयान दिया, उसका गुस्सा भारत के कई शहरों में देखने को मिला। जगह जगह प्रदर्शन हुए। उस दौरान विरोध प्रदर्शन करने वालों की जुबान बेकाबू होती चली गई। उसी मसले पर सबसे जहरीला बयान सुनाई दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता फरहान जुबैरी का। कोई उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आगे निकाल लेंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज कर। फरहान जुबैरी ने ऐसा बयान दिया कि हर कोई हैरान रह गया। यूपी सरकार ने सख्ती बरती। अलीगढ़ पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज की। फरहान जुबैरी की गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए और शुरू हो गई उसकी तलाश। कई टीमें बनाकर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश तेज कर दी। आपकी नामूस के खातिर फ्रांस की एक पत्रिका में जो है मोहम्मद पैगंबर के कार्टून को लेकर एक धर्म विशेष का नाम लेते हुए कुछ प्रकाशित हुआ था। उसी को लेकर जो है उसके द्वारा टिप्पणी करते हुए जान माल को नुकसान कर देने की जो है धमकी दी गई है और इस तरह की जो है वार्ता की गई है। इसी संबंध में जो है थाना सिविल लाइन पर धारा 153 और 506 आईपीसी में फरहान जुबैरी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। 28 अक्टूबर को फ्रांस के शहर नीस में हमला हुआ था। उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। उसी दिन फरहान जुबैरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस के विरोध में मार्च निकाला था। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद पर बने कार्टून के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए जुबैरी ने सिर कलम करने की बात कही थी। कोई उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आगे निकाल लेंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज कर। अलीगढ़ में पुलिस फरहान जुबैरी को तलाश कर रही है, तो लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये एफआईआर मुनव्वर राणा के उस बयान को लेकर दर्ज की गई है जिसमें उन्होंने कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार दिया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। नतीजे भी तेजी से आने लगे हैं। कई जगहों पर रुझान आने लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन मीडिया के सामने आए और जीत का दावा किया। तो वहीं ट्रंप भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि वोटों की चोरी की जा रही है और आज रात संबोधित भी ट्रंप कर सकते हैं। कुछ देर पहले ही उनका ये ट्वीट आया, लेकिन नतीजे चुराने का बड़ा आरोप ट्रंप यहां पर लगा रहे हैं। अगर आप अभी तक के रुझान और नतीजों की तस्वीर पर नजर डालें तो जो बाइडेन काफी आगे चल रहे हैं और ट्रंप कुछ पीछे हैं। और इस बीच ट्रंप आरोप लगा रहे हैं नतीजों की चोरी का। लेकिन किसी भी तरह की धांधली हम नतीजों में नहीं होने देंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं। और देखिए जिस तरह की हलचल अभी अमेरिका में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही कैंप्स में उत्सुकता है, जोश है, उत्साह है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहे हैं। ऐसे में खबरें ये भी आ रही थी कि चुनाव नतीजों के बाद किसी तरह की हिंसक घटनाएं वहां हो सकती है, जिसको लेकर भी वहां पर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं।
We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. मेरे सहयोगी गीता मोहन इस वक्त जुड़ रहे हैं। गीता, यहाँ पर बाइडेन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कि वही बनने वाले हैं अगले राष्ट्रपति। गीता, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ गीता, अब से थोड़ी देर पहले बाइडेन ने जीत का दावा कर दिया है, वहीं ट्रंप आज शाम या फिर ये कहें कि आज रात तक एक बेहद अहम स्पीच देने वाले हैं। क्या कंटेंट हो सकता है स्पीच का? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था जो बाइडेन आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो पोजीशनिंग था। वो ये बताना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि अर्ली नंबर्स देखकर आप ये कोशिश भी ना करें कि आप आके एक्सेप्टेंस स्पीच दे देंगे और कहेंगे कि मैं जीत गया हूं। अगर आप देखें उसके बिल्कुल बाद जो ट्रंप ने ट्वीट किया है, उसी को देखते हुए, उसी को एंटिसिपेट करते हुए ये स्टेटमेंट था जो बाइडेन का। ये और मैसेज ये था कि जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोसेस पूरा खत्म नहीं होता, तब तक आप आके एक्सेप्टेंस स्पीच नहीं दे सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं, तो एक्सपेक्ट समथिंग बिग टुनाइट। अब हमें ये नहीं पता कि नंबर्स क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ट्रेंड्स ही हैं। कई स्टेट्स, कई सारे जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर ये सही है कि ट्रंप आगे हैं, लीड में हैं, लेकिन उन स्टेट्स को कॉल नहीं किया गया है। जो स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें से एक ही स्टेट है ऐसा जिसको बड़े कॉन्फिडेंटली कॉल कर सकते हैं, वो है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा के 29 जो इलेक्टरल वोट्स हैं, वो जाएंगे अब ट्रंप के खाते में। लेकिन एरिजोना जो है वो फ्लिप कर रहा है, वो वापस जा रहा है डेमोक्रेट्स के खाते में। तो ये देखना होगा कि पूरा काउंटिंग कब खत्म होता है और कोई कंसीड करेगा या नहीं। एक बात बताइए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नतीजों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ये नई बात नहीं है। ये जब से प्रोसेस शुरू हुआ, जब से मेल इन बैलेट्स की बात हुई और मेल इन बैलेट्स एक इनके इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा बन गया इतने बड़े तरीके से कोविड-19 के चलते, कि बहुत लोगों ने मेल इन बैलेट्स का इस्तेमाल किया है, अर्ली वोटिंग का इस्तेमाल किया है, तब से वो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत घपला होने वाला है, बहुत चीटिंग होने वाली है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है। और अगर आप जितने भी पोलस्टर्स के वो देखें डेमोग्राफिक्स और कौन है जो अर्ली वोटिंग के लिए गया था, वो लोग थे जिनको कोविड-19 से डर लग रहा था, जिनको लग रहा था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक एक असलियत है और जिससे सबको डरना चाहिए या बचना चाहिए। वो कई मायनों में वो रिपब्लिकन्स नहीं थे, डेमोक्रेट्स थे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने भी अपना खेल बहुत पहले शुरू कर दिया था, जब उन्होंने ये कहा कि चीटिंग हो सकता है मेल इन बैलेट्स में, तो मेल इन बैलेट्स के जो काउंटिंग है उसका इतना विश्वास ना करे। 2 स्टेट्स में वो कोर्ट तक भी गए रिपब्लिकन्स, ये कहते हुए कि पोलिंग डे जो है, जो कल था, जो नवंबर 3 था, पोलिंग डे के बाद कोई और पोलिंग नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पोलिंग अभी भी जारी है। तो इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर वो ये कह रहे हैं कि ये फेयर नहीं है, और अब ज्यादा बढ़ चढ़कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अर्ली ट्रेंड्स में वो आगे हैं। तो अगर मेल इन बैलेट्स को काउंट इन करने लगेंगे इन स्टेट्स में, तो जो बाइडेन की तरफ भी ये स्टेट्स जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले से भूमिका बांध दी है कि चीटिंग होने की गीता नजर बनाए रखिए, क्योंकि बेहद अहम राष्ट्रपति के चुनाव। और मीनाक्षी देखिए, बेहद दिलचस्प कि जो सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी माना जाता है, उसी पर अब इल्जाम लग रहे हैं। और ये कुछ ना कुछ स्थिति भारत जैसी है, जब कोई भी पार्टी जीतने लगती है या फिर हारने लगती है, तो वहां के बैलेट सिस्टम
पर इल्जाम लगा दिया जाता है। बहरहाल शुरुआती जो ट्रेंड्स हैं, जो नतीजे हैं, उसमें बाइडेन आगे दिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप बाजी पलट सकते हैं। नतीजों से पहले ही ट्रंप ने वक्त खत्म होने के बाद भी मतदान का आरोप लगाया है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का चुनावी उत्सव है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। किसकी ताजपोशी होगी, कौन अमेरिका का नया बिग बॉस होगा। ट्रंप एक और पारी खेलेंगे या जो बाइडेन अमेरिका के नए कप्तान होंगे। अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है। नतीजों की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन शुरुआती संकेत ट्रंप की बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। बाइडेन तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे बड़े राज्य एक बार फिर ट्रंप के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रंप को भी पता है कि टक्कर कांटे की है, इसलिए नतीजे से पहले जीत का भरोसा तो जताते नजर आए, लेकिन एक दार्शनिक की मुद्रा बनाए रखी। No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet. Hopefully we'll be only doing one of those two. And you know, winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. कोरोना के खौफ के बावजूद अमेरिका में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पेंसिल्वेनिया जैसे राज्य में वोटरों की कतार नजर आई, तो बड़ी तादाद में लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की है। अमेरिकी वोटरों का ये उत्साह ट्रंप को चुनौती दे रहे जो बाइडेन को उत्साहित कर रहा है। I'm superstitious about predicting what an outcome is going to be till it happens. That's sort of who I am, how I've always run, and but I'm hopeful. बाइडेन को लेकर अमेरिका में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चुनावी नतीजे से पहले बाइडेन पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन में स्थित अपने बचपन के घर गए, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बाइडेन की जीत का रास्ता साफ करने में उनकी पत्नी जिल बाइडेन कल फ्लोरिडा में सक्रिय नजर आईं। फ्लोरिडा हमेशा से रिपब्लिकन के साथ रहा है। टीम बाइडेन आखिरी वक्त तक हवा का रुख मोड़ने में लगे रहे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी कल वोटिंग करने फ्लोरिडा में थी। Florida is a very important state. We're hoping to win it. We are not taking any vote for granted. Joe and I are out here working as hard as we can. So that's why we're here today in Florida. बाइडेन ने कोरोना का मुद्दा उठाया, महामारी का डर दिखाया। कोरोना से निपटने में ट्रंप की नीति और नाकामी पर चोट किया। ट्रंप अमेरिका को और समृद्ध बनाने का सपना दिखाते रहे। अब अमेरिका तय कर रहा है कि किन के वादों में उसे सच्चाई नजर आई। वॉशिंगटन में प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात नोएडा की, जहां यूट्यूब पर धमाल मचाने वाला शख्स कातिल निकला। बदले का फितूर इस पर ऐसा छाया कि आज वो सलाखों के पीछे है। भाई बाइक ना बहुत मस्त है यार। हाँ यार एडी भाई बाइक बड़ी मस्त है भाई, एक बार चला के देखूं मैं। भैया चलाने को तो दे नहीं सकता यार, बड़ी महंगी। वो यूट्यूब का स्टार था। आज आशु चल रहे हैं। उसके यूट्यूब पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अरे तू आता रही हो। लेकिन सिरफिरी आशिकी का ऐसा फितूर निजामुल खान के दिल पर छाया कि स्टार से सीधे कातिल बन गया। रोती बिलखते इस मां को देखिए जिसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साक्षी ने अपने भाई को खो दिया और उसके भाई की जान लेने वाला कोई और नहीं
बल्कि निजामुल खान है जो उससे प्यार करने की बात करता था। मासूम साक्षी को इस बात का कभी इल्म नहीं था कि निजामुल खान से उसकी दोस्ती इसके भाई की मौत का सबब बन जाएगी। एक दिन साक्षी का दोस्त निजामुल इसके भाई कमल की गोली मारकर हत्या कर देगा। भाई का कोई कसूर नहीं था, वो निर्दोष था। मैं सिर्फ बात करती थी, उसने मुझे मना कर दिया तो मैंने बात करनी बंद कर दी थी। उसके बाद उसकी कुछ बात हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, उन लोगों ने क्यों किया कैसे किया मुझे नहीं पता। मुझे मेरी आंखों के सामने मैं तड़प तड़प के मरते देखना चाहती मेरे भाई के हत्यारों को। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जो निजामुल है उससे आपकी बातचीत होती थी तो आपके भाई ने मना किया? मैंने उसके बाद बात करनी बंद कर दी थी। उसके बाद उसने क्या सोचा क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। निजामुल खान की दोस्ती नोएडा सेक्टर 31 में रहने वाली साक्षी से थी। इस दोस्ती की खबर साक्षी के भाई कमल को लग गई थी। कमल ने निजामुल के साथ साक्षी को भी इस दोस्ती को तोड़ने के लिए कहा था। बहन साक्षी भाई के कहने पर निजामुल से बातचीत बंद कर दी, लेकिन निजामुल लगातार साक्षी को कॉल करता था, जिस वजह से कमल ने निजामुल की पिटाई कर दी थी। बस इसी पिटाई का बदला लेने के लिए निजामुल ने अपने दो दोस्तों के साथ कमल की हत्या की साजिश रच दी। भैया जो है ना गिरफ्तार करे हैं, दोषी हैं वो, उनको ऐसी सजा दी जाए फांसी के बराबर। जिसने गोली मारी है और जिसने भी गलत करा कुछ उनको फांसी की सजा दी जाए। मेरा तो इकलौता लाल चला गया, जैसा मेरा इकलौता लाल गया और मारा उन्होंने, गोली मारी है उसके, पहले तो खूब पिटाई करी और फिर पीछे से यहाँ से गोली मारी। 28 अक्टूबर की शाम को इस्कॉन मंदिर के पास रोड पर मिले शव के तार जब पुलिस ने तलाशने शुरू किए तो कड़ियां यूट्यूब में धमाल मचा रहे निजामुल खान तक पहुंच गई, जो अब अपने साथियों के साथ सलाखों के पीछे है। अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। मुंबई में 1 साल की चोरी हुई बच्ची को पुलिस ने 3 घंटे में लाकर माता पिता के सुपुर्द कर दिया। बच्ची को चुराने वाली और उसे खरीदने वाली दोनों महिलाएं साथ ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। दोनों आरोपी महिलाओं के पति भी इस वारदात में शामिल थे। दिल दहला देने वाला ये वीडियो मुंबई के चारकोप इलाके का है। एक गरीब परिवार अपनी 1 साल की मासूम बच्ची को लेकर फुटपाथ पर सो रहा था। सीसीटीवी में देखिए कैसे एक महिला चलते हुए आती है और बच्ची को उठाकर अंधेरे में गायब हो जाती है। जब बच्ची के माता पिता की सुबह नींद खुली तो अपनी बेटी को न पाकर उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो दौड़े दौड़े पुलिस के पास पहुंचते हैं। सुबह 11:30 पौने 12 के बीच में चारकोप पुलिस स्टेशन पे आके कंप्लेंट दिया है कि रात को 9 बजे वो अपनी बच्ची के साथ में सोई थी। वो सोने के बाद में जब उसको अर्ली मॉर्निंग जब उसकी नींद खुली तब उसको उसकी 1 साल की बच्ची जिसका नाम बबीता है वो उसको उसकी जगह पे नहीं मिली। तो उसने आसपास के सभी एरिया में उसको ढूंढा, लेकिन वो ना मिलने की वजह से उसने 11:30 के दरमियान चारकोप पुलिस स्टेशन में आके लड़की गुमशुदा हुई ऐसी कंप्लेंट दी। आमतौर पर पुलिस पर आरोप लगते हैं कि वो गरीब लोगों की नहीं सुनती, पर इस मामले में मुंबई पुलिस ने कमाल कर दिया। पूरे इलाके के सीसीटीवी खंगाले गए और अपने सूत्रों की मदद से पुलिस बच्ची को ढूंढने में जुट गई और कुछ देर बाद पता चल गया कि बच्ची को उठाने वाली औरत कौन है। बच्ची को उठाने की आरोपी औरत और उसके पति ने बच्ची को एक बेऔलाद दंपति को 15,000 रुपए में बेच दिया था। सचिन एलवे और उसकी वाइफ सुप्रिया एलवे, ये दोनों को 11 साल हुए, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने को लड़का या लड़की कोई तो भी चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने अपनी मंशा प्रकट की थी। तो जो हस्बैंड वाइफ है रश्मि पवार और राजू पवार, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्लान किया और वो लड़की को चारकोप एरिया में से उठा के इन कपल को 15,000 में उन्होंने बेचा हुआ है। बच्ची चोरी करने की आरोपी महिला रश्मि पवार और बच्ची खरीदने की आरोपी महिला सुप्रिया येलवे दोनों ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। इनके पतियों समेत पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। अब चारकोप पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपियों के खिलाफ इससे पहले भी बच्चों की किडनैपिंग या उन्हें बेचने का कोई मामला है। आज तक ब्यूरो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।